Hello, a very warm welcome to all of you. I am Assistant Professor Navnath Pawar from the Department of Botany, SNJBS Art, Commerce and Science College, Sandwad. And today I am going to start an online lecture series on subject seed science, or you can say that it is a seed technology. So before I am going to start our first lecture, it is necessary to know about some basic information of seed. Means like what is seed technology, what are the scope of seed technology and their importance. So all these aspects we are cover in today's lecture. Okay, so I will start today's lecture with the first slide, that is the definition of seed. So botanically, seed is a ripened ovule containing embryo in arrested state of development with a food reserve in endosperm or cotyledon and protective layer seed coat. Okay, so this is a perfect definition of seed. Seed is the ripened ovule. What is ripened ovule? The ovule which is containing a mature embryo. Okay, what is mature embryo? This embryo is ready for development or ready for the growth. Okay, but it is in the arrested state of development, and this seed having a little amount of food in their cotyledon or in the endosperm. Sometimes some seeds endosperm is absent, so that time food is stored in the cotyledon. ओके, जब हम बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा एंडोस्पर्म के बारे में, सीड का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और उसमें कौन सा फूड है जो स्टोर करके रखता है सीड. ओके, सो जब एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा तो कहा वो उस सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, और उस टाइम पे ये जो फूड है वो कॉटिलिडॉन में स्टोर होता है. ओके, एंड प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज सीड कोट. तो सीड कोट जो है वो क्या करता है, सीड का प्रोटेक्शन करता है. मीन्स जो एम्ब्रियो है अंदर उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, तो सीड कोट करता है. बाद में एक और डेफिनेशन है, सीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनी पार्ट और ऑर्गन ऑफ प्लांट विच हैज़ कैपेसिटी टू रीजनरेट न्यू प्लांट विच कैन बी सोन और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट मच डिफिकल्टली. So according to this definition, seed is any part of plant. Means you can take an example of bryophyllum. Okay, so bryophyllum leaf, whenever it detached from the plant and buried in the soil, it develops a new plant. Okay, because it is having a ability to regenerate or to developing a new plant. Or you can take an example of sugarcane. Also you can take an example of banana sucker. Okay, so any plant part which is capacity or which is having a capacity to regenerate. Okay, so this is a seed. Or simple definition is any plant part which is used for commercial multiplication of crop is called a seed. So कौन सा भी प्लांट का पार्ट जो भी क्रॉप के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको सीड बोल सकते हैं आप. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीड. देन दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ सीड. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल रखे हैं, जिसमें ग्राउंड नट, कैशू नट, पीनट है और बहुत सारे सीड्स है यहाँ पे. ओके, सो ये सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए मैंने दिए. बाद में हम जा रहे हैं अभी सीड टेक्नोलॉजी की तरफ. सो व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी? सीड टेक्नोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड. Okay, so all those aspects from the production of seed to the distribution of seed, this is a seed technology. अभी सीड प्रोडक्शन ये बहुत बड़ा टर्म है. मतलब सोइंग से लेकर जब सीड आप निकालते हैं आपके फील्ड में से, तो ये पूरा टर्म जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स, मतलब पहले क्या होगा कि सीड का प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, वो सीड भेजेंगे सीड इंडस्ट्री को, वहाँ पे उसका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा. अगर ग्रेन होगा तो ग्रेन में प्रोसेसिंग नहीं होता है. बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है. ग्रेन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सीड जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फिजिकली और जेनेटिकली प्योर होता है.
और ग्रेन जो है तो ग्रेन के बारे में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये जो सीड है प्रोडक्शन के बाद जाता है प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग के बाद उसका स्टोरेज किया जाता है, जो कि बहुत सारे कंडीशन को मेंटेन करके उसका स्टोरेज करना पड़ता है। बाद में उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि ये सीड प्योर है या नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में हो जाती है। और उसके बाद में उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑल दोज थिंग्स, दिस इज सीड टेक्नोलॉजी और a body of knowledge which deals on production, handling and storage of seed. This is the second definition. So according to second definition, a body of knowledge means ऐसे लोगों की एक टीम या फिर ऐसी कोई कमिटी जिसमें जिन लोगों को ये सारी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज है कि सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग का क्या प्रोटोकॉल है, तो ये सब नॉर्म्स फॉलो करके ये नॉलेज की जो बॉडी है वो क्या करती है, सीड को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, सो this is a second definition. According to third definition, seed technology is that discipline of biology that deals with the production of high quality seeds. Okay, so ये भी simple definition है, आपको जो भी पसंद हो आप वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं आपके। उसके बाद में हम चलते हैं स्कोप की तरफ। ओके, तो यहाँ पे स्कोप का जो मीनिंग है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, स्कोप का मीनिंग जो है तो वो वर्किंग एरिया अंडर द सीड टेक्नोलॉजी, उसको हम स्कोप बोलते हैं। ओके, सो इंडिया हैज़ अ वास्ट कंट्री एंड bestowed with a varied soil and has got different agroclimatic zones enabling year round cultivation of crop. सो हमको पता है कि इंडिया में क्या है, 3 टाइप के सीज़न होते हैं, एक तो खरीफ होता है, दूसरा रबी और तीसरा जो सीज़न है वो होता है समर सीज़न। ओके, अभी ये जो 3 सीज़न है तो 3 सीज़न में एक ही क्रॉप नहीं चलता हमारे यहाँ, मतलब हर एक सीज़न के लिए अलग क्रॉप होता है। इसकी वजह से क्या है कि हम ऑल ईयर मतलब पूरे ईयर में एक ही क्रॉप का रोटेशन नहीं ले सकते। ओके, सो बाय एंड लार्ज मोस्ट सीड क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन्स। सो जो कि लार्ज सीड क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मेज के जैसे, तो वो खरीफ सीज़न में हम शो करते। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप आर प्रोड्यूस इन रबी सीजन्स एंड दे पजेस बेटर क्वालिटी सीड्स देन द क्रॉप ग्रोन इन खरीफ। और जो कि वेजिटेबल्स वगैरह जो है तो हम वो खरीफ में लेते, सॉरी वो रबी में लेते हैं हम। ओके, सो इंडियन फार्मर कैन प्रैक्टिस विद मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सो यहाँ के जो हमारे यहाँ के फार्मर है तो उनको प्रैक्टिस हो गई है कि जो भी मल्टीपल सीज़न आएगा तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि क्रॉप को लगाते हैं अपने फील्ड में। And the farmers can opt for a different crop like cereals versus oil seeds, vegetables, fiber crop, etc. in all the 3 seasons with खरीफ, रबी एंड समर। सो इंडिया के जो फार्मर है हमारे यहाँ के, वो ऑप्ट का मीनिंग होता है कि चॉइस। वो क्या करते हैं कि सीज़न वाइज क्रॉप को चॉइस कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ सीज़न है तो उस टाइम पे बड़े क्रॉप लगाएंगे, जब रबी आएगा तो उस टाइम पे वेजिटेबल लगाएंगे, जब समर का सीज़न आएगा तो जिस क्रॉप को वाटर इरिगेशन कम लगता है तो वैसे क्रॉप लगाएंगे। मतलब हमारा क्या है तो मल्टीपल सिस्टम के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं और उस हिसाब से सीड को चॉइस किया जाता है। तो इसके बेसिस पे पहले क्या था कि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन लो हो गया पहले तो, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सीड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट डेवलप किए, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जो कि ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो उसमें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCA जो एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, तो उसके उन्होंने क्या किया कि सजेस्ट किया कि सीड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट चाहिए हमारे स्टेट में या फिर हमारे कंट्री में। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ड दैट देयर इज़ अ नीड टू एस्टैब्लिश सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड ICAR इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन एंड सजेशंस गिवन बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है तो उसके सजेशन के बाद में
हमारे गवर्नमेंट में क्या किया, सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किए। सो अकॉर्डिंग टू सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाज इनिशिएटेड थ्रू आउट द कंट्री विद द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, इस्टेब्लिश किए, तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ओके, तो उस टाइम पे पहला ऑब्जेक्टिव था उनका टू टीच सीड टेक्नोलॉजी कोर्स। मीन्स जो भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है तो उनमें सीड टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाने लगा, या फिर जो ICAR इंस्टीट्यूट है तो उसमें भी वो सिखाया जाने लगा कि सीड का जो प्रोडक्शन है या फिर उसमें जो प्रोसेसिंग टेस्टिंग वगैरह चलती है तो वो किस हिसाब से होनी चाहिए। बाद में मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिसर्च ऑन सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च चलने लगा कि सीड का प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए, उस पर प्रोसेसिंग और बाद में उसकी जो टेस्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए, और उस प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो करेंगे तो सीड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया उस टाइम पे। ओके, बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रेंथन द सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च। सीड टेक्नोलॉजी का जो भी रिसर्च है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। टू गिव ट्रेनिंग टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग टेस्टिंग एक्सेट्रा। और लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, लास्ट के ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि जो भी सीड टेक्नोलॉजी के प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में या फिर टेस्टिंग में इन्वॉल्व है तो उन सबको ट्रेनिंग दी गई, मतलब दी जानी चाहिए। और क्या किया, जो ICAR है या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उसने बाद में सिर्फ स्टूडेंट को नहीं तो जो भी फार्मर है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सो ये हो गया सीड टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में। बाद में अभी हम जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सीड टेक्नोलॉजी के। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन क्रॉप साइंस। क्रॉप साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब देखिए, जब तक सीड का स्टडी नहीं हुआ था तब तक पता नहीं था हमको कि सीड में क्या क्या चलता है। मतलब जो भी प्रोसेसेस है, जैसे कि मान लो रेस्पिरेशन हो, सेल डिवीजन हो या फिर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस हो, तो ये होती भी है, हमको पता नहीं था। तो क्या हुआ, बाय स्टडिंग द सीड और जर्मिनेटिंग सीडलिंग man has gained knowledge about growth regulators, respiration, cell division, morphogenesis, photosynthesis and other metabolic processes. This is possible since inside each seed is a living plant capable of exhibiting almost all the processes found in the mature plant. तो जब सीड का स्टडी किया गया या फिर जो भी सीडलिंग है, सीडलिंग यानी कि जो प्लांट न्यूली डेवलप हुआ है सीड से, तो उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो जब उसका स्टडी किया गया तब पता चला कि सीड में वो सब कैपेसिटी है जो कि एक बड़े ट्री में होती है, या फिर सब प्रोसेस चलती है जो कि बड़ा वाला जो ट्री है तो उसमें होती है। मतलब जैसे कि रेस्पिरेशन मान लो तो वो भी सीड में चलेगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा, सीड में सेल डिवीजन भी होता है, और सीड का मॉर्फोजेनेसिस वगैरह सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्टडी किया गया। तो ये इम्पोर्टेंस है। बाद में हम मेन इम्पोर्टेंस के तरफ अगर जाएंगे सीड के, तो उसमें आता है हायर यील्ड। मीन्स एज यू सो यू रिप। आप अगर आपके फील्ड में कुछ लगाएंगे तो वो डेफिनेटली ग्रो होगा। सो बाय सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स हायर प्रोडक्शन इज ऑब्टेन। अगर आप गुड क्वालिटी के सीड लगाएंगे, आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं कि मैं अभी डायरेक्टली बैड क्वालिटी सीड्स और गुड क्वालिटी सीड का कंपैरिजन करने वाला हूँ। मतलब अगर आप फील्ड में बैड क्वालिटी के सीड लगाएंगे तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके यील्ड पे होगा। ओके, तो इसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए कि गुड क्वालिटी की सीड लगानी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट किसके हिसाब से, कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है तो उसको लो करना है। अभी हम कैसे लो कर सकते हैं, व्हेन वी यूज़ गुड सीड्स द कॉस्ट ऑफ अदर इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, इरिगेशन वाटर, इंटरकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन एंड लेबर रिमेन्स लो। अगर हम बैड क्वालिटी के सीड लगाएंगे तो क्या होगा कि हमको ये जो इनपुट्स है वो भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। गुड क्वालिटी की सीड में क्या होगा कि आप एक बार उसको फर्टिलाइज़र दीजिए तो वो काम चला लेगा उससे, या फिर उसका जो सर्वाइवल कैपेसिटी है तो वो भी ज़्यादा होगा अदर सीड के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप बैड क्वालिटी की सीड लगाएंगे तो वो क्या होगा कि एक तो ग्रो होगा और उसके बाद में शेड ऑफ हो जाएगा, उसको डिसीज़ ज़्यादा जल्दी पकड़ लेगा। ओके,
तो ये सब क्या बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाएगा अगर आप बैड क्वालिटी के सीड शो करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए कि गुड क्वालिटी के सीड शो करने चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा। ओके, बाद में मोर इनकम, थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो means significantly produced seeds are treated for protection against insect, pest and diseases, hence we get more produced of good quality which fetches a higher price। अगर हम गुड क्वालिटी के सीड लगाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हुआ होता है, मतलब जैसे कि उनको अगेंस्ट फंगिसाइड हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो, उनके अगेंस्ट उसको ट्रीट किया जाता है। और जब हम इन सीड को, गुड क्वालिटी के सीड को शो करेंगे फील्ड में, तो क्या होगा कि ये अच्छे से ग्रो होगी और जो भी पेस्ट वगैरह, फंगस वगैरह उस पर अटैक करने वाला है तो वो अटैक नहीं होगा। ओके, अगर आप गुड क्वालिटी के सीड नहीं लगाते तो क्या होगा, ये सब अटैक करेगा आपके क्रॉप पे और उससे क्या होगा, आपका जो यील्ड है, यील्ड कम निकलेगा और उसका डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ होगा, तो आपकी इनकम पे होगा। ओके, तो अगर हमको मोर इनकम चाहिए तो गुड क्वालिटी के सीड ही लगाने हैं। बाद में रिलायबिलिटी एक इम्पोर्टेंस है, मीन्स आपका ट्रस्ट, द सीड परचेस हैज़ अ फेथ दैट द सीड ही हैज़ परचेस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। मीन्स जब भी फार्मर कोई सीड परचेस करता है तो उसका ट्रस्ट होता है उस सीड पे कि हमने जो सीड परचेस किया है तो वो गुड क्वालिटी का है। और ऐसा होता है क्योंकि जो भी सीड बाज़ार में सेल होता है तो वो सर्टिफाइड होता है जनरली। ओके, विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी सीड नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ है या फिर उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि अगर कोई पैकेट सीड का खुला हुआ हो या फिर वो डिटेरियोरेट हो तो वो आपको नहीं लेना है। ओके, तो आप उस पर ट्रस्ट रख सकते हैं। और लास्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेडिग्री, purity percentage like a physical and genetic purity, germination percentage and moisture content in the seed are given on the label attached with the seed packet or container, and a leaflet containing improved agricultural practices it's kept inside। so जब भी सीड का पैकेट लगे तो उस पर जो भी उसके साथ सर्टिफिकेट आएगा तो उस पर सब लिखा होगा कि इसका परसेंटेज कितना है प्योरिटी का, या फिर वो नहीं होगा तो जर्मिनेशन परसेंट तो डेफिनेटली दिया होता है, मतलब उस पर लिखा होता है कि 90% या फिर 99%। जनरली 99% तो होता नहीं है जर्मिनेशन। ओके, क्योंकि जर्मिनेशन का मतलब अगर आप समझते होगे तो मैंने अगर 100 सीड लिए किसी सीड लॉट से तो और उसको हमारे फील्ड में शो किया तो शो करने के बाद उसमें से अगर 99 जर्मिनेट हो गए तब हो गया उसका परसेंटेज 99 जर्मिनेशन का। ओके, अगर 90 सीड जर्मिनेट हुए 100 में से तो क्या हुआ, परसेंटेज 90%। तो वो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आर अटैच्ड विद दैट लेबल, एंड ये जो लेबल है तो उस लेबल के साथ में जो भी इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मीन्स ये जो आप सीड लाए हैं तो उस सीड को कैसे ग्रो करना है ये भी दी होती है। ओके, सो ऑल these are all importance of seed। okay, so this is sufficient for today's lecture, this is introduction, and अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ही स्लाइड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो सीड का डेफिनेशन, ओके, जो कि मैंने सिंपली 3 डेफिनेशन दिए हुए थे। बाद में सीड टेक्नोलॉजी की भी उसी हिसाब से बताया मैंने आपको कि उसके भी 3 डेफिनेशन है। ओके, बाद में उसका स्कोप क्या है सीड टेक्नोलॉजी का और उसके इम्पोर्टेंस देखें। ओके, सो थैंक यू फॉर द अटेंशन।